idea में start करना accounting principle में accounting is an art and science of recording business transaction in a systematic manner. Accounting कौन है आर्ट है और साइंस है हम तर लेके बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करवा सिस्टमेटिक मैनर कहना हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना तर आर्ट और साइंस है अकाउंटिंग टू कन्वे द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस certain principles are required to be followed for maintaining business transaction business transaction कला के हमको केतेटा प्रिंसिपल हमको फॉलो करवा पड़े दरकार है करवाटा बिना हमको खाना बनावा लगी हमको कुछ विधि ना पूरा फॉलो करवा पड़े हेंते बिजनेस ट्रांजेक्शन जितने बार हम करना रिकॉर्ड करना हमको किसी प्रिंसिपल आपको फॉलो करवा पड़ेगा in the absence of common principle there will be a chaotic situation and every account will have its own principle যদি আমার পাশে কিছু কমন প্রিন্সিপাল নাই ন বলে chaotic situation ଥିବ এটা chaotic situation ହେନ ଏହାର ନିଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିସି ହେଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଭ୍ରି ଆକାଉଣ୍ଟ ତାର ନିଜର ଓନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୋଟେ ଥିବା Not only the utility of account will be less, but this will not be comparable even in the same business. যদি দেখো সেম প্রিন্সিপাল না কি বলে কাই আমরা এটা আমরা কম্পেয়ার না করতে পারি আমার নিজের এন্ডান থেকে আমরা বাকি বিজনেস কম্পেয়ার করব আমি আমার নিজের প্রিভিয়াস সামনে আমরা কম্পেয়ারিং করে না পারি এন্ড না আমি আমার সেম পিলা যা আমার ঘরের লোক আমার সমান कंपेयर करता हेंते आम आम बिजनेस के आम सामान बिजनेस कंपेयर करना जदि आम बहुत सेम प्रैक्टिस फॉलो ना कर प्रिंसिपल फॉलो ना कर बोले हाँ तार अलग भाई आम अलग तो कंपेयर नहीं पारे आदि आम गोटे प्रिंसिपल फॉलो करना केवे इटा केवे सेटा बोले क्या हम आम आम निज प्रिवियस प्रेजेंट ईयर को कंपेयर करते ना पारे It becomes essential that common principles should be followed for measuring business revenue and expense. Actually, এটা ଗୋଟେ essential ଜିନିଷ ଗୋଟେ common principle follow करवाटा जेन्ना कि हम business रो केते income होला केते expense रो जानले को help करस. According to terminology committee of AICPA, the word principle is used to mean a general law or rule adopted or performed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice. According to the terminology committee AICPA रो देखि जेन हमर वर्ड है प्रिंसिपल एटा गुटे एटा का लॉ के कमा रूल रेगुलेशन दिसी हट दिसी जेते प्लस हम जेन में काम जो सब गोटे रूल रेगुलेशन से ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେଲା ଆଉ ହେଟା ଆମ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଫିଲ୍ଡ ଦେଲା ଆମକୁ ହଟିବାର ଦରକାର ହେନ୍ତା ଆମକୁ ଆକାଉଣ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଇଟା ଦରକାର A.W. Johnson described accounting principle as the adjustment there and rule of accounting, the method and procedure of accounting and the application of this rule and procedure to the actual practice of accounting. Then A.W. Johnson also nahi presented accounting usme entire for distribution the assumption and rule of accounting. The assumption is the rule of this accounting the method and procedure of accounting. The method to accounting the procedures and the application of this rule and procedure to the actual practice of accounting. I see an application the rule regulation and procedure and actual practice के बनना खाली पूरी लेना ऐसे actual काम कराते वाला यूज करते accounting principles are thus rule of action of the method and procedure of accounting commonly adopted while recording business transactions. Accounting principles are classified into two categories. Accounting principles है rule of action किसी और method में कोई procedure में से commonly adopt किसी ला जितने भी हमें business
के रिकॉर्ड कर आमको किसी मेथड किसी प्रोसीजर हिसाब से आमको करा पड़े कहीं भी नियम मैंने किसी भी करना पारे सब गोटे प्रोसीजर तो अच्छे आउ ताके मेनली दुईटा कैटेगोरी क्लासीफाई कराई फर्स्ट हूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और सेकेंड हूँ अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो यहाँ पढ़ा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन है। द टर्म अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू connect basis accounting postulates that is necessary education and condition upon which accounting is based। तो accounting concept कौन है जेनटा आमको दरकार है जेन एडमिशन माने जेन कंडीशन नेसेसरी बेसिक अकाउंटिंग सेटा आम पढ़मा क्लास किसी आमको देखिए सब तो नहीं दे कि किसी आमको देखिए पढ़मा आम पहला अच्छे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन कुछ देखो इन अकाउंटिंग बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। बुझे कि बिजनेस सेपरेट जिन ओनर अलग है बिजनेस अलग है। अकाउंट आर प्रिपेयर्ड टू गिव इनफॉरमेशन अबाउट द बिजनेस एंड नॉट दोज हू ओन इट। अकाउंट आम कहाँ प्रिपेयर कर बिजनेस से क्या चलुचे बिजनेस कौन है अकाउंट प्रिपेयर कर ना कि ओनर कौन अच्छे ना a distinction is made between business transaction and personal transaction and also between business property and personal property of the owner। हमको अलग रखा कारण बिजनेस ट्रांजेक्शन के और पर्सनल ट्रांजेक्शन के बिजनेस ट्रांजेक्शन अलग है पर्सनल ट्रांजेक्शन अलग है। जेन आम इनकम टैक्स देसु आम बिजनेस इनकम टैक्स ना दे आम निजे पर्सनल देसु ना बिजनेस देख जेना इनकम मेरा से एक्सपेंस को अच्छे सैलरी दबार अच्छे रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल मेंटेनेंस बिल मतलब बहुत किसी रोचे अलग जाऊँगी हेन से आम सैलरी नामा कि आम से पैसा पेपर नौचु बोले कैपिटल जेन अच्छे नौचु बोले आम सेम समय इनकम टैक्स ना बिजनेस और बिजनेस में अलग अलग बिजनेस जेन जेन जगार बनी कि नहीं आम बिजनेस ना घिनसु एक्स वाई जेड बिजनेस रहा जगह ना किसी पर्सन जदि बिजनेस यूज कर किसी बिजनेस ना घिनब और निजे पर्सनाल से जगह बोले पर्सनाल हिसाब से घिनब तो दुटा अलग अलग है। आम बिजनेस पर्सनाल ना रखूँ पर्सनाल बिजनेस ना रखूँ। तापर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी टू एसेटन द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नेसेसरी है हमको बिजनेस ऑपरेशन जानबार लगे। इन केस द प्राइवेट एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन आर नॉट सेपरेट it will not be possible to determine through profitability of this concern। जबकि आम पर्सनल और प्रोफेशनल पर्सन बिजनेस आम निज पर्सनल ट्रांजेक्शन अलग अलग ना कला तो आम क्लियर जान पार कि आम प्रॉफिट रही कि लॉस रही आम आम निजरटा बेसी होगा आम निजर खर्चा मैंने बेसी बोला कारण आपको जो एक्सपेंस दिखा जो प्रॉफिट छोड़ा ना हमको जो एक्सपेंस दिखा जो आम घर खर्चा मिसे बोलते कि हमको दुटा अलग अलग रखा कथा। फिर सेकेंड होते गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कौन कहसी कि आम बिजनेस लंग टर्म तक जावा आम भावसु कि आम बिजनेस गोटे सर आम जब भी कहीं काम स्टार्ट कर भावसु कि मसे पर आम बंद नहीं कर ना आम भावसु कि लंग टर्म चलना हमको सब बोले ये प्रॉफिट मिल था आम रहू ना रहे बिजनेस खाऊ ना आम भावसु। इट इज presume that the business concern will continue to exist infinitely or at least in the near future। इनफिनिट अब कितने बरस तक चालू कितने बरस तक तो नहीं ना एमन से आज पिला काली बंद कहला तो ना बहुत है लॉन्ग पीरियड तक चलो सेटा ही आम भावसु सब बोले। द प्रेजेंट रिसोर्स ऑफ द कंसर्न आर यूटिलाइज्ड टू अटेन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। यहाँ जेन आम मेसिनरी भाव ना क्या कहते जिन आमको फिक्स से दरकार मेसिनरी मैंने आम क्या भावसु लॉन्ग टर्म चलू 5-10 बरस तक चलू बाबा जो चलू से हिसाब से घिसु ना केवल टेंशन कि आर मस खराब हो फिर आम ना घिसु ना आ सब लॉन्ग टर्म तक चालू बोली
हेते लगे आम सब काम कर लॉन्ग टर्म हिसाब से देखिक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपोर्टेंट इन रिलेशन टू द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है केते बोले जो आम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन जो आम रिकॉर्ड करूँ और जो आम फाइनल स्टेटमेंट बुझेगा ये बहुत दरकार पड़े। फॉर एग्जांपल it is only this assumption that while preparing final account of the concern fixed asset and show in the balance sheet at dismissing balance method going concern value एग्जाम्पल सब नहीं बोले हमें एज्यूम करला जितना हमें फाइनल अकाउंट बनूँ ना आम बैलेंस शीट आम फिक्स एसेट्स के लिखु तो है नो आम कण गोटे जानसु ना कि फिक्स एसेट गोटे डेप्रिसिएशन टे हेसी आम देखु कि केते बरस तह जीव देखिक गोटे डेप्रिसिएशन आम लगासु है तो यहाँ लगा बोले हेल्प हम जदि आम आर मास खराब होगा डेप्रिसिएशन बहुत ही हाँ हमको बहुत गोटे भैल्यू नहीं मिले गोइंग कंसर्न बहुत जरूरी है। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट कारण देखना द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर बेस्ड ऑन द कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिते भी हमारे अकाउंट रिकॉर्ड सब कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऊपर ही रिकॉर्ड होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगभग रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है। द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस आर so at cost which has been paid or agreed upon between the parties है आम जेन एसेट्स और लायबिलिटी का बिजनेस जेन ट्रांजेक्शन शो करमा आम के जेन या तो भरी थी जिते पैसा देती जिते आम मझे एग्री जो भरतीमा बोली है। द फिगर आर रिकॉर्ड ऑन ऑब्जेक्टिव बेसिक फिगरटा अच्छे ऑब्जेक्टिव बेसिक रिकॉर्ड होगा। There is no room for personal assessment or in going the figure. If subjective it follow in record the same assets will be valued at different figure by different individual. Everybody will have its own view about various assets. So cost concept is helpful in making truthful records. The records become more reliable and comparable. है ऐसी सभी निजर हिसाब से वैल्यू के कम करते जाता बाबा आज आम गोटे नुआ कंप्यूटर सेट आना हमको पड़ला 25,000 बाकी आम जाना हफ्ते पर आमको कौन दरकार पड़ा बिक्री मोबाइल है आमको कौन सी 25,000 मिलवा कि 24,000 भी मिलवा ना तो कमे बोले सब भैल्यू दाम अलग है संपूर्ण करवा स्टाइल भी अलग अलग होगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट हेल्पफुल कर ट्रूथफुल रिकॉर्ड टे करवार लगे आम गोटे भल भैल्यू तो मिल पार आम कंपेयर कर ड्वेल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट ड्वेल होता सब ट्रांजेक्शन दुईटा एक्सपेक्ट डेबिट हमारे सिर्फ क्रेडिट होगा। दिस कॉन्सेप्ट लाई एट दि हार्ट ऑफ होल अकाउंटिंग सिस्टम गोटे होल अकाउंटिंग हार्ट है ना। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्वेल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट जिते भी हम मॉडर्न अकाउंटिंग आउट सब ड्वेल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट ही बेस होती। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉर एवरी डेबिट ट्रांजेक्शन दैट इज ए कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन जैसे कहली जहाँ भी हमें जब किसी भी आइटम में डेबिट कला तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट सियोर ही थी जब आम किसी परचेस कला बोले कौन जब आम परचेस की डेबिट करूँ आइदर कैश देमा ना क्रेडिट सियोर हो क्रेडिट सियोर तो अच्छे आइदर हम कैश क्रेडिट होगा ना क्रेडिटर हमको क्रेडिट होगा तो सब ट्रांजेक्शन दुईटा एक्सपेक्ट सियोर थी 100% ही थी। देयर मस्ट बी ए गिवर ऑफ बेनिफिट एंड ऑल्सो ए टेकर ऑफ इट जदि के बेनिफिट दौचे बोले कि जड़े सियोर रिसीव भी करूँ जो दुकानदार हमको सामान दौचे बोले आम ताके रिसीव भी करूँ एना वैसे कि खाली से दौचे आम रिसीव भी तो करूँ ना है। सपोज ए परचेज बिल्डिंग फॉर 20,000 he will get the building and will part with the cash for similar amount जदि क्या बिल्डिंग दाम पूरे हो जाए जब आम घिनला बोले कौन आमको से बिल्डिंग ना मिलला बाकी तार बदला कौन आम कैश भी देला
से सेम अमाउंट कम ना से कम जाते सुन जितर से बिल्डिंग है तेरा हम क्या करना सके सो वन अकाउंट विल बी डेबिट एंड द अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिट तो एनु का गोटे अकाउंट डेबिट है आर अकाउंट क्रेडिट है द डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट आ डेबिट अमाउंट से तार इक्वल हवा क्रेडिट अमाउंट The dual Excel concept had created the system of double entry bookkeeping. Then dual Excel concept is हटा हम double entry bookkeeping के आनिच्छे है It is because of this concept that the total claim of outsider and owner are always equal to the total asset of the concern in the form of accounting or balance sheet equation. तो balance sheet equation का है external liability plus capital equal total asset. हमारे टोटल एसेट्स करने काढमा जिते भी हमर एक्सटर्नल लायबिलिटी अछि प्लस जिते भी हमर पाखे कैपिटल अछि आउ नथिले टोटल लायबिलिटी इक्वल टोटल एसेट्स थिबार कथा जिते लायबिलिटी होते एसेट्स नथिले एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल कैपिटल हमर थिबार कथा मैंने ये दुटा तीन नंबर ता हमें जॉय सब जगह रे एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल कैपिटल हला तापर हम नेक्स्ट अछि मनी मैनेजमेंट कांसेप्ट According to this concept, only those transactions are recorded in an accounting which can be expressed in terms of money. Money में जो concept हमें सही चीज़ हमको record करना जिन कि आमर money से transaction record करना जिन कि हमें ताकि money show करी पारना जिन money show ना हमें से जिनिस तक हमें record ही ना करूँ. Money provides a mechanism by which real source can be transferred among different individuals. Money is accepted as a medium of exchange of goods and services. किसी भी हमें ट्रांसफर करते किसी भी रिसोर्स आते हमें मनी हिसाब से देखो है मनी गोटे एंटा मीडियम है जहाँ द्वारा हमें गुड और सर्विस एक्सचेंज कर वन इज प्रिपेयर टू सेल वन प्रॉपर्टी इज एक्सचेंज फॉर मनी जितने आम किसी सेल्स कर तर बदला का आम तक मनी नेसु आगो चलता कि सामान बदला सामान बाकी यहाँ सामान बदला पैसा या सर्विस बदला पैसा हटाई चलती the debtors and creditors are willing to pay and receive money in near future जेन debtors में कौन पैसा तंगे देवार थी तंको आ creditors आंको पैसा मिल वाले जोगी थी सो thus money acts the medium of immediate exchange of goods and service and also is standard for deferred payment ला money उटे एंता medium ते जिना immediately exchange होगा good और service के goods ना service जिनका भी नियर आओ कहो गोटे स्टांडर्ड ऑफ पेमेंट जदि हमको जेन जिनिस दरकार आउ सामना बेला के अब आम जिनिस दरकार थे कि सामान एक्सचेंज करमा ना किसी वैल्यू ना बट आम जो मनी अच्छे बोले आम बदला किसी भी घिनी पार्मा है किसी भी सामान एक्सचेंज बोले आम नहीं पार्मा बिकी पार्मा किसी भी मनी गोटे एंता मीडियम है जहाँ द्वारा आम किसी भी घिनी पार्मा है It is because तार बदला आम किसी भी फिक्स It is because of this concept that qualitative or non-monetary things transaction are either omitted or recorded separately. है लगे आम काम करूँ जेन जिते भी आम जी नॉन मॉनिटरी जिते जहाँ भी ट्रांजेक्शन थी ताकि तो आम आदर अनदेखा करदेमा नहीं लेखो नथिला ताकि सेपरेटली आम देखा लेखसु आम से ट्रांजेक्शन मध्य रिकॉर्ड ना कर एंड डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जगह ना मिले आम अलग लिखिदेमा जी आमको आमको आम जगह दरकार आम अलग लिखमा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आम ना लिखो फिर अकाउंटिंग पीरियड और एक्चुअल कॉन्सेप्ट है financial position and profitability of a concern are assessed at a regular interval called accounting period. हमें आम फाइनेंशियल पोजिशन कि आम प्रॉफिट एटा गोटे गोटे पीरियड आम देखु चेक करूँ मेनली आम गोटे इयर रे ही आम चेक करूँ या फिर तुम बिजनेस साइज देखिक देखु है मेनली बहुत लोग ताके लास्ट टाइम देखा कि 31 मार्च के आखापाखी मार्च मस ही झगड़े लोग देख
while preparing profit and loss account of a concern or revenue items relating to that period are taken into consideration in respect of the fact that whether this item are paid or payable ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାରିଂ କରୁମା ପି ଏଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ କି रेवेन्यू आइटम जिते भी अच्छे आम ताके देखमा रेवेन्यू आइटम सबके आम देखसु चेक करसु है कनसीडर नेमा इन रेस्पेक्ट आम ताके पे कला न कि आमको मिलवा है छाड़ देसु एवं तक एंता भी किसी कि आम कि आगु से पे कर बोले हेरे का मेनू ना मिसू बाकी एंता भी जैसे आमको ये वर्ष पे करवा था कि आम पे नुहे पड़ता है कि आम मिसामा ये वर्ष थी कि आम एथर पे करवा ई खर्चारे आवा आम ई वर्ष ना कि आर वर्ष खर्चारे आवा तो जेन वर्ष खर्चा हे वर्ष देखामा जेन वर्ष इनकम से वर्ष देखामा यदि आमको आगु से पैसा मिली बोले आम से वर्ष नहीं देखो पैसा मिलती आम नेक्स्ट ईयर देखामा है Similarly, a balance sheet is prepared or to reveal the financial position of the company on a particular date. And the आम balance sheet भी गुटे particular date रही आम बनासु. Realization concept कौन भी देखमा. This concept is related to the realization of revenue. એટલે आम realize करना revenue income. The revenue is realized either from sales of product or from रेंडरिंग ऑफ सर्विस आम रेवेन्यू क्या जाना कि आम के सेल्स है देखिक आम के सर्विस प्रोवाइड कर सर्विस दूबा सामान ने बिकुब बोले सर्विस के देखिए देखिए सामान बिकुचे से सामान के बिकी देखा दि सेल इनवॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेज सच एज रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर प्रोडक्शन और असेंबलिंग ऑफ गुड्स डिस्पैच ऑफ गुड्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड रिसीट ऑफ मनी बोले ये क्या करवा सेल्स इनवॉल्व आम देखमा कि नंबर ऑफ स्टेज किनटा सच एज रिसीप्ट केतेटा अच्छे ऑर्डर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स केते आना करछू है केतेटा गुड्स आम देछू ट्रांसफर करछू ओनरशिप ताके आउट ताके मिला केते मनी आम रिसीव कला सबू के देखिक आम देखमा कि आम सेल्स केते ए क्वेश्चन अराइज एज टू व्हेन शुड द रेवेन्यू बी कंसीडर मैं रेवेन्यू चेक करना कितने एज ए जनरल प्रिंसिपल सेल्स और प्रॉफिट ऑन सेल्स विल बी कंसीडर टू बी रियलाइज व्हेन आइदर मनी इज रिलीज और लीगल ऑब्लिगेशन इज क्रिएट ओनरशिप और टाइटल टू दी गुड्स ट्रांसफर आम के कंसीडर करमा आम रेवेन्यू है बोली आइदर आम बिक्री कर आम प्रॉफिट आनी पाला आमको कैश मिलीगला ना आम से तर ओनरशिप के दे देलान बोले क्रेडिट सेल कर देलान हमको नियर फ्यूचर श्योर तार पैसा मिलवा से आम रेवेन्यू के कंसीडर करसुँ आम कि आउटे अच्छे आम मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट आसी एज ए जनरल प्रिंसिपल द कॉस्ट आर मैच टू रेवेन्यू टू मेजर द प्रॉफिट आम कॉस्ट रेवेन्यू से मैच करसुँ प्रॉफिट रखबार लगी ए डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस इज नेसेसरी हमको तो आगो प्रेजेंट पास और फ्यूचर एक्सपेंडिचर गोटे अलग अलग सेपरेट बने नमा अकाउंट है कैपिटल रेवेन्यू भी है रेवेन्यू एक्सपेंस के दीजिए द रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड प्रोडक्ट और सर्विस आर मैच आम सेम पीरियड रही रेवेन्यू और कॉस्ट के मैच करमा सिमिलरली द एक्सपेंस वाज utility to be derived over a number of years are taken to the balance sheet as derived revenue expenditure and the similarly हमें समान पीरियड रही आम सब के चेक करमा एंड देन एक अलग से आर वर्षर आम रेवेन्यू देखला ए वर्षर कॉस्ट देखला मैंने जेन वर्ष से वर्ष समान पीरियड नमा कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकम ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ओवर ए नंबर ऑफ इयर्स दो डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर गोटे पार्ट है कॉस्ट चली डेप्रिसिएशन हिसाब से तो इन आम सरला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आम देखमा अकाउंटिंग कन्वेंशन तब तक के लिए टाटा।